So hi guys, this is the seventh day of my road trip, and today I would be returning back home. So I have some meetings to attend for another 1.5 hours, and so I booked Uber at 9 o'clock. So after attending the meetings, I would be directly going to the airport. I did have my breakfast. I do have sneakers and some Gatorade chewable tablets left out, so I would be also having that. So I would be flying from San Francisco to Detroit, again to Boston, like same way. I would be arriving in Boston around 10:30 in the night. So it's a pretty long journey, and so the trip has come to an end. Today officially I'm leaving San Francisco. I came here around 5 years back for one of the Thiel Summit conference, and it was really amazing, and I fell in love with San Francisco once again, and today again I fell in love. And so I will just give you a tour of this house now where I'm staying, and then we will be returning back. So as soon as you enter the house, the right side is a small closet with iron and some hangers. Then we come to the washroom. It's pretty clean out here. They have completely maintained it. They had all the supplies I needed. Mirror. Then this is the main room. A good king size bed. Closet which has another television in it. Hidden television. Working desk which I have all my things left out like that. And some night lamps to go. That's all. The room was pretty clean, and there's a heater come AC. It's similar to what I stayed way before. I don't want to live San Francisco. I want to just spend some more time, because last few months due to this COVID, and then previous year with first semester too stressful, I never got chance to relax. And after completing my undergraduate, I directly came to my master's, and it's going to take another 1.5 years to graduate, because I have my co-op till December, and I won't be taking any courses that time. And also job scenario is not good, so I need to extend my courses. So yeah, that's been pretty all about me. Yep, that's all. Maybe I will tell about all the emotions in another video. I need that in another video. I need to attend meetings now. Okay, bye. यार पता नहीं क्यों रोना जैसा लग रहा है. पता नहीं, मुझे रोना जैसा, बहुत रोने जैसा फील हो रहा है अभी करेंटली. बट जो भी है, क्योंकि मैं वो इंसान नहीं हूँ कि जो हमेशा 9 to 5 जॉब करे और बस काम करते रहे. मुझे घूमना फिरना पसंद है. मुझे दुनिया के अलग अलग जगह जाना है, अलग अलग खाना ट्राई करना है. कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे, कुछ बुरे एक्सपीरियंस होंगे, बट वही तो ज़िंदगी है. लाइक तुम कोई भी बड़ी कंपनी में काम कर लो, गूगल ले लो, अमेज़ॉन ले लो, फेसबुक ले लो, इतना पैसा कमा लो, लेकिन उस पैसे का मतलब क्या है जब अगर तुम घूम नहीं रहे हो, कुछ लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे हो. क्योंकि मैंने लोगों को देखा है कि सिर्फ काम कर रहे, लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे. बट मैं वही हूँ, मैं काम भी करता हूँ, लाइफ भी इंजॉय करता हूँ. आपने व्लॉग्स में देखा ही होगा कि मैंने कार में बैठ के सारा काम किया, पुश कर रहा था, कोड रिव्यू का सबमिट कर रहा था. इंटरनेट कनेक्शंस के कितने प्रॉब्लम हो रहे थे. हाईवे पे हम जा रहे, घूम रहा हूँ, मैं इधर काम कर रहा हूँ बैठ के, कि काम भी इम्पोर्टेंट है. तो अभी आज तो मेरा कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि आज मैं पूरा दिन फ्लाइट में जाएगा. तो पूरे सैटरडे संडे बहुत बड़ा वर्कलोड रहेगा, और वो करना पड़ेगा, मुझे ख़त्म करना पड़ेगा सारे स्प्रिंट के काम. कोड को रीफैक्टरिंग करना है, तो वो 2 दिन का काम पूरा मुझे सैटरडे संडे काम करना पड़ेगा. बट हो जाएगा, कर लेंगे, क्या होता है. जो भी है वही तो ज़िंदगी है, जियो ज़िंदगी. और ऐसा रोड ट्रिप करना चाहिए, हमेशा करते रहना चाहिए. हम लोग भी वही सोच रहे थे कि अभी दोस्त आएंगे तेज के 11th-12th स्टैंडर्ड वाले हैं, उनके साथ भी कुछ रोड ट्रिप प्लान करते हैं. कुछ आउट ऑफ कंट्री, कुछ एक्सपीरियंसेस. उन सब कोरोना ठीक हो जाए, बिकॉज कोरोना में हर जगह जाना पॉसिबल नहीं है. तो छोटे छोटे जगह गए थे तो ठीक था, बट देखते क्या होता है. और घूमते फिरते रहना चाहिए. ज़िंदगी से बाहर निकलो, 9 to 5 वाली ज़िंदगी से. लाइक 50% सेव करो, 50% खर्च करो, ज़िंदगी जियो. क्या रखिए ज़िंदगी में. तो ये दुनिया बहुत बड़ी है, और मैं कैरन नीट को बहुत मानता हूँ, बिकॉज मुझे उनका चैनल आई गेस 2 साल पहले पता चला था, और
मैंने उनके ऑलमोस्ट सारे वीडियोस देखे, मैं अभी भी उनका फॉलोइंग करते रहता हूँ मैं। आई रियली, मुझे वो कपल बहुत पसंद आए। लाइक वो लोग ज़िंदगी जी रहे। ज़िंदगी बस कोडिंग नहीं है यार, कोड के घूमना फिरना भी ज़िंदगी होती है। और एक पर्टिकुलर, मैं बिलीव करता हूँ कि एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है, उसमें ही घूम लेना चाहिए। क्योंकि उसके बाद एक उम्र होती है कि फिर बीच में हो जाता है कि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, केयर करना पड़ता है, तुम अकेले नहीं रहते हो। उसके बाद फिर बुढ़ापा आ जाता है, फिर तुम्हें कोलेस्ट्रॉल देखो, वेट देखो, एस्थमा, आर्थराइटिस, लाइक बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। हेल्थ डिट्रॉइट होता है इन ह्यूमंस का वंस दे एज। दो पीपल ओल्ड एज में भी ट्रैवल करते हैं आफ्टर रिटायरमेंट, एंड दैट्स दो आई वांट टू डू इट। बट कुछ चीज़ें हैं जो यंग में ही कर लेनी चाहिए। उसका मज़ा यंग में ही आता है, लाइक बैचलर्स ट्रिप एंड ऑल। सो करूँगा मैं, बट अभी तो बहुत इमोशनल, इसके लिए व्लॉग बना रहा हूँ, लाइक इमोशनल कैप्शन कर रहा हूँ। काश, देखते हैं, अभी मुझे तो और घूमने का मन कर रहा है, बट टाइम रिस्ट्रिक्शंस, मनी रिस्ट्रिक्शंस, जॉब रिस्ट्रिक्शंस, थैंक्स टू कोरोना। मेरा पहले मई में 15 दिन कैलिफोर्निया में स्पेंड करने का था। इट वॉज ऑलमोस्ट डबल द टाइम आई स्पेंट हियर। आई हैड सो मेनी प्लान्स, लॉस एंजलिस घूमना, सैन डिएगो जाना, एंड देन सेसफ में रोड ट्रिप, कैंपिंग, स्काई डाइविंग, स्कूबा, एवरीथिंग आई वांटेड टू डू, बट इट ऑल गॉट कैंसल। उसमें भी मुझे थोड़ा दिन इंडिया घूमने को मिल जाता, बट क्या करें, ज़िंदगी भी ऐसी है। जो कि एंजॉय किया, रोड ट्रिप किया, अच्छा किया, अच्छा खासा बड़ा सा बिल बना है। सो करते कुछ जुगाड़, आगे करेंगे अब ट्रिप, और मैं व्लॉग्स डालते रहूँगा ट्रिप के, कैसे काम करते करते दुनिया भी घूम रहा हूँ। क्योंकि कोरोना ने बहुत बुरी चीज़ है, बट उसने एक अच्छी चीज़ निकाली, एटलीस्ट फॉर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की। बहुत सारे कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को वर्क फ्रॉम होम दे रहे परमानेंटली। सो आई गेस दैट्स अ गुड थिंग। लाइक मैं यूएस का सैलरी इंडिया में तो नहीं कमा पाऊंगा, मतलब इंडिया जाके बैठे रहो और यूएस का सैलरी, वो चीज़ पॉसिबल नहीं। बट बस कुछ लीगल प्रॉब्लम हो सकती है। बट ऐसे कि मैं इधर ही रह रहा हूँ और महीने में एक हफ्ते के लिए कहीं और निकल गया, मैं कहीं और रह गया कि दुनिया के किसी पार्ट में चला गया, एंड जस्ट घूम के आगे एक महीना उधर भी, एक हफ्ता काम कर रहा हूँ, साथ में काम भी कर रहा हूँ, घूम भी रहा हूँ, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। काश ऐसा जॉब मिल जाए। मैं वैसे ही जॉब ढूंढ रहा हूँ कि घर पे बैठ के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकूँ। ऑफिस के, हाँ उसके भी डीमेरिट्स है कि ऑफिस जाना नहीं मिलेगा, लोगों से इंटरेक्ट करने नहीं मिलेगा, बट 1-2 दिन चले जाएगा ऑफिस हफ्ते का, उसमें क्या है। तो जो भी चीज़ है अच्छी चीज़ है। अब दुनिया घूमे, चलो कैलिफोर्निया हो गया, दिसंबर में शायद फ्लोरिडा जाऊँ मैं। अगर मैं दिसंबर में मोस्टली इंडिया का ही प्लान कर रहा है, बट नहीं हुआ जो फ्लोरिडा जाएगा। तो इसके पहले होपफुली मेरा फुल टाइम लग जाए, फुल टाइम इम्पोर्टेंट है, देखते हैं, लेट्स सी। सो लेट्स गो। मीटिंग, मेरी मेंटर अभी तक आई नहीं है ऑनलाइन, सो मीटिंग देर से, बट आई होप शी कम्स फास्ट। आई हैव टू गो, जल्दी निकलना भी है, ऐसा में ट्रैफिक भी हो सकता है, आई हैव नो आइडिया, बट लेट्स सी। बाय। Finally guys, I've landed in Boston. It was a pretty long journey and it's around 10:45 in Boston. So I'm just going to my lift pickup point. So I booked a lift. It should be coming around in 10 to 15 minutes. So it has been a long journey carrying all this baggage, and it's already hot here. So let's hope the car comes soon and the climate is cooler in my room. And the most funniest thing was that I had a one-stop layover at Detroit, and the
cabin crew which flew from San Francisco to Detroit. That was the same cabin crew from Detroit to Boston, though we changed the planes. It was really funny. Even they greeted me like, welcome back, welcome, long journey. Yeah, it was so fun. So yeah, now going home, waiting for the car. Let's hope it comes soon. So bye.